Good afternoon students, welcome to today's video lecture. We have finished exercise 10.1 and all the illustrations before it. So now let us start today's new topic of straight lines, which is different forms of lines. ठीक है, straight lines में अब आज हम सीखेंगे different forms of lines. Okay, so first is different forms of line. Already हम लोग कर चुके हैं different forms of line में. Different forms of lines. ठीक है, पहली लाइन जो हम कर चुके हैं वो है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन. पहला जो हम कर चुके हैं वो है हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में आपको क्या पता है वो सारी चीजें लिख लो. इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी है? इट इज अ लाइन. इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू y axis. परपेंडिकुलर टू y axis. फिर horizontal line can be horizontal line can be ये सब रिपीट करते रहो. can be x axis or a line parallel to x axis. parallel to x axis. फिर horizontal line पे क्या होता है? all the points on a horizontal line, all the points on a horizontal line, on a horizontal line have same y coordinate. और एक और चीज आपको पता है कि slope of horizontal line is 0. slope of a horizontal line is 0. ये आपको पता है. और horizontal line को हम लोग कैसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में HL. अब let ax1 y1 bx2 y2 be two distinct points. Suppose ये दो distinct points हैं और line AB horizontal है. Suppose ax1 y1 bx2 y2 are two distinct points in R2 और वो एक horizontal line AB form करते हैं. तो लिखो AB is a horizontal line. So therefore let AB is horizontal line. Suppose line AB is horizontal है. ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप क्या आएगा? 0. डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, पर उसके पहले हमको क्या लिखना है? Since the line AB is horizontal, all the points on a horizontal line have same y coordinate. So therefore y1 is equal to y2 होगा और x1 is not equal to x2. क्यों? Because a और b अलग अलग पॉइंट्स. ये पॉइंट आपको पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए a और b के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे. सपोज let y1 is equal to y2 is equal to b. तो आपको याद रखने का therefore for horizontal line AB let y1 is equal to y2 is equal to b. तो a x1 y1 वो हो जाएगा a x1 b और b x2 y2 हो जाएगा b x2 b. इसका मतलब a और b का y कोऑर्डिनेट सेम आएगा b. तो ऑल द पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन अगर उसमें तीसरा भी कोई पॉइंट होगा c तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे c x3, b. b अगर पॉइंट होगा तो वो होगा x4, b. तो कहने का मतलब ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन AB will have same y coordinate b. Therefore equation of line AB, equation of horizontal line AB क्या आएगा? y is equal to b. मतलब सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट b. और दूसरा याद रखने का slope of horizontal line AB क्या होता है? slope m0. तो ये आपको याद रखना है. ऑलरेडी हम कर चुके हैं पर एक बार फिर रिवीजन हो गया और I wrote it in some different way. Second line which you have already learned is vertical line. Second line which you have learned is vertical line. Vertical line को कैसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? Okay, what is a vertical line? It is a line. What is a vertical line? It is a line perpendicular to vertical line. किसको perpendicular होती है? Vertical line perpendicular to x axis होती है. So it is a line perpendicular to x axis. वर्टिकल लाइन क्या हो सकती है? इट कैन बी
It can be y-axis or a line parallel to y-axis or a line parallel to y-axis. सेम फॉर्म में हमको मैं सारे पॉइंट सेम वे में रिपीट करूंगा जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में लिखा है. सो इट कैन बी y-axis on a line parallel to y-axis. फिर क्या? all the points on a vertical line, all the points on a vertical line have क्या आता है? all the points on a vertical line have same x coordinate. ये आपको याद रखना है. all the points on a vertical line have same x coordinate. फिर slope of a vertical line is undefined. ये हम सीख चुके हैं. slope of a vertical line is undefined. slope of a vertical line is undefined. दोनों तरीके से स्लोप की दो डेफिनेशन हमने की थी. यूजिंग पहला क्या था? स्लोप अगर ax1 y1 है और bx2 y2 है तो स्लोप ऑफ अ लाइन डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स. डिफरेंस मस्ट बी टेकन इन द सेम ऑर्डर. और स्लोप of a line using angle made by the line in positive direction of x axis. वो क्या था? Suppose a line L makes an angle of measure theta with positive direction of x axis in anti-clockwise direction. So slope of a line क्या आता था? Tan theta. So अब let A x1 y1 comma B x2 y2 be two distinct points in R2, be two distinct points of two dimension. Okay, so and here line AB कैसे है? line AB is vertical. line AB is vertical is given. अब line AB vertical है. vertical line की खासियत क्या है? all the points on a vertical line have same x coordinate. So x1 is equal to x2 होना चाहिए. दोनों x coordinate same होने चाहिए and y1 not equal to y2 because A और B distinct points हैं. x coordinate equal to जो vertical line है. Okay. Now let ये दोनों x coordinates x1 is equal to x2 is equal to a. So therefore for vertical line AB a क्या हो जाएगा? a x1 y1 हो जाएगा a y1 और b क्या हो जाएगा? x2 y2 क्या हो जाएगा? a y2. उसका मतलब a और b के x coordinates equal to a है. सारे पॉइंट्स ऑन वर्टिकल लाइन के भी have same x coordinate a. So b x2 y2 मतलब वो b क्या हो जाएगा? a y2. तो आप ऐसा लिख दो all points on vertical line AB will have same x coordinate कितना? will have same x coordinate equal to small a. क्यों? because x1 is equal to x2 equal to a रखा है मैंने. और आप देखो a का x coordinate a है और b का x coordinate भी a है. so therefore equation of vertical line AB जिसमें सारे पॉइंट्स आर हैविंग x कोऑर्डिनेट a तो वो क्या हो जाएगा? x is equal to a. और दूसरा स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन AB क्या होता है? अनडिफाइंड. तो वो तो आपको याद रखना है कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड. वो एक रिजल्ट है, आपको हमेशा वैसे प्रूव नहीं करना है. देयरफॉर और दूसरा याद रखने का स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन AB स्लोप का सिंबल m अनडिफाइंड. कुछ टीचर्स लिखते हैं does not exist, that is also allowed, it is not defined. ठीक है, ये हो गया. अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ. फर्स्ट वन के एग्जांपल में दे रहा हूँ. These are questions only. Let a 1 2 ये हो गया a x1 y1 b y2 b x2 y2. यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं a और b और पूछा है फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हियर इसका स्लोप और इक्वेशन ऑफ ab निकालना है. हियर y1 is equal to y2 है. a और b का y1 is equal to y2 and x1 is not equal to x2. a
A12 था, लेट मैंने रखा था लेट A12 इज इक्वल टू AX1 Y1 इज इक्वल टू AX1 Y1 और B था pi, 2, B पॉइंट मैंने रखा है pi, 2 और B हो गया x2 y2 और क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन, फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB। सिंपल। तो हियर आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, हियर इसका स्लोप और निकालना है, फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो A और B को x1 y1 मैंने देखा, A कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो हियर दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल है, सो y1 इज इक्वल टू y2 एंड x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो बाय डेफिनेशन सीधा याद रखना, ऐसा नहीं है, बाय डेफिनेशन लाइन AB क्या हो जाएगी, A और B के y कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, इसका मतलब इसके y कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, इसके y कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन कैसी हो गई, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल। तो बाय डेफिनेशन लाइन AB इज हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले इसका स्लोप 0 होता है, तो स्लोप ऑफ सीधा लिख लेगा हॉरिजॉन्टल लाइन AB जो m है इज 0 और इधर हियर लेट हियर a क्या है, a क्या है 1,2 और b क्या है pi, 2। तो दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है, इसके लिए इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन AB, horizontal line पे what is the speciality, all the points have same y coordinate here, तो y coordinate equal जो है y1 is equal to y2 is equal to 2 है and x1 is not equal to x2। इसका मतलब दोनों का y coordinate same है 2, so all the points on line AB will have same coordinate, same y coordinate equal to 2, so y is equal to 2, that is आप ऐसे भी लिख सकते हो y minus 2 is 0। हो गया। सेकंड, सपोज लेट A √2, 0, B √2, pi, find slope and equation of line AB। These are all 1 mark questions, मेथड में आएगा, इतना लिखना पड़ेगा, 1 मार्क नहीं, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल। तो क्या करोगे, फाइंड स्लोप और इक्वेशन पूछा है, तो क्या करने का, स्लोप और इक्वेशन पूछा है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको A को x1 y1 सिलेक्ट करो, फिर B को x2 y2 सिलेक्ट करो। अब पहले चेक करो कि दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट सेम है या y कोऑर्डिनेट सेम। यस, हियर x1 इज इक्वल टू x2 और वो कितना है, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू √2 एंड y1 इज नॉट इक्वल टू y2। सो A और B का x कोऑर्डिनेट इक्वल, उसका मतलब बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, लाइन AB इज वर्टिकल, लाइन AB इज वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन AB, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन AB सीधा लिखने का इज इक्वल टू m। डोंट गो बाय डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स और डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स, लंबा चौड़ा नहीं करना है, सीधा लिखो अनडिफाइंड। फिर इक्वेशन पूछा है, तो वर्टिकल लाइन की खासियत क्या होती है, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वर्टिकल लाइन हैव सेम x कोऑर्डिनेट। सो हियर फॉर वर्टिकल लाइन AB, A is √2, 0 और B is √2, pi। दोनों का x कोऑर्डिनेट √2 है, therefore इक्वेशन ऑफ vertical line AB, A और B का x coordinate same है √2, so all the points on vertical line AB will have same x coordinate equal to √2, so that is all, x is equal to √2 या x minus √2 is equal to 0। आधा मार्क स्लोप के लिए और आधा मार्क इक्वेशन के लिए, नो अदर कैलकुलेशन यू डू। अगर आपको बेसिक पता है, आप देखो ऐसे क्वेश्चंस और कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो तो बहुत इजीली आपको ये मिल जाएगा। ना वन मोर पॉइंट, सपोज लेट
Okay, equation of a horizontal line, equation of horizontal line and vertical line through a given point, मतलब एक पॉइंट दिया है, तो अगर एक पॉइंट दिया है तो उस गिवन पॉइंट से हम कितनी वर्टिकल लाइंस और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज द गिवन पॉइंट इज HK, उस HK पॉइंट से हम कितनी वर्टिकल लाइंस और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज द गिवन पॉइंट इज HK, ओके, लेट गिवन पॉइंट बी, लेट गिवन पॉइंट बी PHK, PH, K, okay, what is the vertical line, what is the horizontal line, वो आपको पता होना चाहिए। और एक रेफरेंस डायग्राम है, ओके, ये एक रेफरेंस डायग्राम है। सपोज HK, P ऑफ HK पे इधर रखता हूं, HK इधर है, P ऑफ HK इज इन हियर, मैंने इसे ड्रॉ किया। तो व्हाट इज अगर मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, अगर ये HK है तो अगर मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है P ऑफ HK से, गिवन पॉइंट P ऑफ HK सपोज इधर है, तो इससे इस पॉइंट से कितनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। वर्टिकल लाइन इज अ लाइन पैरेलल टू, इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो यहां से आउटसाइड पॉइंट से x एक्सिस को हम कितनी लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही, तो एक ही हम परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, ये हो गई वर्टिकल लाइन थ्रू PHK। और दूसरा, अगर मुझे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू PHK, तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, आउटसाइड पॉइंट P है, P से हम कितनी लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं y एक्सिस को, एक ही, तो एक ही हम ड्रॉ कर पाएंगे। यस, ये हो गई। और कॉमन सेंस है, इसका इक्वेशन होगा y is equal to k, इसका इक्वेशन होगा y is equal to k और इसका इक्वेशन होगा x is equal to h, because what is a vertical line? वर्टिकल लाइन की खासियत क्या होती है? ऑल द पॉइंट्स हैव सेम x कोऑर्डिनेट, तो p का x कोऑर्डिनेट क्या है, h, तो सीधा इसका इक्वेशन क्या है इस वर्टिकल लाइन का, x is equal to h। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन की स्पेशलिटी? ऑल द पॉइंट्स हैव सेम y कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट ये पता है, तो ऑब्वियसली ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विल हैव द सेम y कोऑर्डिनेट, और वो होगा y is equal to k, so that is the answer। So y is equal to k will be the horizontal line, y is equal to k, hn, or x is equal to h is the vertical line। Simple। So let given point be PHK, so through PHK, सीधा याद रखो, through PHK x is equal to h, that is x minus h is equal to 0 is required horizontal, is sorry, x is equal to h through PHK, x is equal to h, x is equal to h, that is x minus h is equal to 0 is vertical line perpendicular to x axis। सिंपल। और दूसरा, थ्रू गिवन पॉइंट PHK, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, y is equal to k, that is y minus k equal to 0 is horizontal line perpendicular to y axis। The horizontal line is horizontal line perpendicular to y axis। सिंपल, आपको पता चल गया। तो और हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल किसको होती है, वर्टिकल लाइन किसको पैरेलल होती है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर नाउ ऑब्वियस टू यू, वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है, थ्रू PHK कौन सी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपको पता चल गया। तो एक बार वापस लिख लो सिंपल नोट में कि गिवन पॉइंट इज P, लेट PHK बी गिवन पॉइंट, मतलब हमको ये पॉइंट दिया हुआ है और क्वेश्चन होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू PHK। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन
2ph के, या फिर वो पूछेंगे फाइंड द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, पैरेलल या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो सीधा लिखने का लेट ph के इज द गिवन पॉइंट, सो सीधा लिखो थ्रू ph के वर्टिकल लाइन खासियत क्या होती है, ऑल द पॉइंट्स द सेम x कोऑर्डिनेट, तो वर्टिकल लाइन थ्रू ph के विल हैव x इक्वल टू h, दैट इज x is through PHK, therefore through PHK x is equal to h, x is equal to h, that is x minus h is equal to 0 is vertical line perpendicular to x axis, don't go for parallel because हमें p और h के कैसे पता नहीं, through PHK y is equal to k, that is कौन सी लाइन होगी, y minus k equal to 0 is horizontal line किसको perpendicular to y axis, ऐसा कोई अगर इलस्ट्रेशन है ना सॉल्व। Yes, example number 6 आप देखो, example number 6 आप देखो, आपको सीधा आंसर आ जाएगा। Look at example number 6. Go for example number 6. Given point is find the equation of lines parallel to axis and passing through -2, 3. Given point. Okay, इधर आपको ड्रॉ करना है, तो इधर एक छोटा सा ऐसा एक यूज ड्रॉ फॉर दिस डायग्राम के PHK is the given point. So PHK is the given point, तो उससे हम एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। गिवन पॉइंट इज PHK, दिस इज x equal to h vertical line and y is equal to k is the horizontal line। सिंपल। अब एग्जांपल नंबर 6 में कर रहा हूं, गिवन पॉइंट उसको p रखो, p minus 3, उन्होंने पूछा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द एक्सिस या परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकल लाइन पूछा है थ्रू p minus 2 3 hk ये फॉर्म में आपको पता है ना, तो आप सीधा लिख सकते हो, अगर 1 मार्क क्वेश्चन है सीधा आप लिख सकते हो थ्रू phk x equal to h is vertical line and y is equal to k is horizontal line, सीधा। तो here through p minus 2 3 x is equal to -2, that is क्या आएगा, x plus 2 equal to 0 is vertical line पहला पॉइंट, और दूसरा थ्रू PHK -2 3 p का x कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो अगर मैं p -2 3 बस p -2 3 का x कोऑर्डिनेट -2 है, तो उससे कौन सी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, उससे जो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट -2 होना चाहिए, तो x is equal to -2, x is equal to -2, so x plus 2 is 0 हो जाएगा, दैट इज वो इक्वेशन आएगा x plus 2 is 0, और थ्रू p -2 3 अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, p का y कोऑर्डिनेट 3 है, सो हॉरिजॉन्टल लाइन की खासियत क्या होती है, ऑल द पॉइंट्स हैव सेम y कोऑर्डिनेट, सो y is equal to 3, दैट इज y minus 3 equal to 0 is horizontal line, finished। अगर टाइम है तो ये फिर लिख देंगे, अगर टाइम नहीं है तो सीधा लिख दो थ्रू p -2 3 x equal to -2 is vertical line and y is equal to 3 is the horizontal line, finished। See equation of a line, okay, and parallel to x axis, वर्टिकल लाइन मतलब आप समझ गए किसको पैरेलल, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आप समझ गए किसको पैरेलल, और अगर आपको उसको प्लॉट करना है तो आप देखो p -2 3 कौन से क्वाड्रेंट में है, p -2 3 कौन से क्वाड्रेंट में है, ज्योमेट्रिकली अगर आपको समझना है y dash -2 3 is in second quadrant, -2 3 is in second quadrant, suppose like this is the point, तो वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करनी है
तो ये आ गई, और हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, ये आ गई सिंपल। व्हाट इज द पॉइंट P minus 2 3? So what is this vertical line? X is equal to minus 2, perpendicular हो गई, और ये horizontal line Y is equal to 3, perpendicular. This is the horizontal line and X equal to minus 2 is the vertical line. Finish. Simple. Clear? See, geometrically आप सोचोगे तो बहुत इजीली है, ठीक है? आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, and observe the way I am doing. Whatever points I am telling are more than enough for you to solve all the best level questions which can come in any exam based on the theory which is given in our textbook. Okay, so that point is done. Now, different forms of a line length. Next form is point slope. Point slope form of a line. Point slope form of a line. Point slope form of a line. इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है? What is point slope form of a line? Point slope form of a line. Point slope form of a line. उसमें आपको पता है कि point वाला line पता होगा, और दूसरा लाइन का स्लोप एग्जिस्ट करेगा, तो लाइन का स्लोप आपको पता होगा, और फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको ढूंढनी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन. तो लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी एल. पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन मतलब पॉइंट ऑन एल पता है, पॉइंट ऑन लाइन एल है ए. सपोज x1 y1, दिस इज गिवन. स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन L is n. This is also given. ये हमको दिया हुआ होगा, और इसका स्लोप एग्जिस्ट करता है, तो as स्लोप n एग्जिस्ट, ये लाइन कैसी होगी? लाइन L is नॉन वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता, इधर स्लोप एग्जिस्ट करता है, तो ये लाइन हो गई नॉन वर्टिकल, ये लाइन हो गई नॉन वर्टिकल. ओके, जैसे कैसे डायग्राम मैंने बना दिया. दिस इज द लाइन L. इस पे एक पॉइंट पता है A, x1 y1, और इसका स्लोप इक्वल टू n. अब आपको ये याद रखने का कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन, 2D में क्या था? 3D में मैंने आपको सिखाया था. 3D में एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या था? P x y z. 3D पे मैंने आपको सिखाया था कि एनी पॉइंट ऑन लाइन L क्या था? P x y z. तो 2D में एनी पॉइंट ऑन लाइन क्या होगा? L P x y. Let P x y, let any point on, let P x y here P x y, let any point on L, let any point on L is equal to P x y. So here कौन से पॉइंट्स हैं? मतलब A x1 y1 and p xy are on line L, और slope of L क्या है? तो by definition, अगर आप डायग्राम बना सकते हो, by definition what is slope of a line? By definition what is slope of a line? Slope of a line is difference in y coordinates upon difference in x coordinates. P is any point on the line. P is any point on the line. तो by definition slope m is equal to क्या है? Difference in y coordinates मतलब y minus y1 upon x minus x1, y minus y1 upon x minus x1. तो ये हो गया m into x minus x1 is equal to y minus y1. तो ये आ गया y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus y1 is equal to m into x minus x1 is required point slope form, is required point slope form of line L. Required point slope form of line L passing through which point? Passing through point A x1 y1 and having slope and
हैविंग, आपको सीधा इक्वेशन याद रखना है, डेरिवेशन याद नहीं रखना है, हैविंग स्लोप इक्वल टू m। आपको खाली इतना याद रखना है कि आपको खाली पॉइंट स्लोप फॉर्म में इतना ही याद रखना है कि पॉइंट ऑन द लाइन क्या है, ax1 y1। ओके, पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये मैंने आपको बता दिया, और आपको खाली इतना याद रखना है जो मैं कर रहा हूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन L। What is the point slope form of line L? मतलब पॉइंट ऑन लाइन L कौन सा है, पॉइंट ऑन लाइन L कौन सा है, a x1 y1, a x1 y1। स्लोप ऑफ L, स्लोप ऑफ लाइन L दिया हुआ है m एग्जिस्ट, मतलब पॉइंट ऑन द लाइन L दिया है और स्लोप ऑन द लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L इज गिवन। एनी पॉइंट ऑन लाइन L, any point on line L is P xy। तो एक ऐसा एक रफ डायग्राम मैंने बना दिया, ये लाइन L है, इस पे एक पॉइंट है A x1 y1 और any point on the line L is P xy और slope of line L is m। Here line L अभी वापस पूरा डेरिवेशन नहीं करना है कि बाय डेफिनेशन y minus y1 is equal to m is y minus y1 upon x minus x में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो सब नहीं करना है। Here slope exists, so here line L is vertical, अरे non vertical, here line L is non vertical। तो आपको याद रखना है कि अगर पॉइंट ऑन लाइन L is ax y1 और स्लोप ऑफ लाइन L is f and any point on line L is pxy, तो y minus y1 is equal to x into x minus x1 is point slope form, is equation of line L passing through point, okay, x1 y1 and having slope finish। इतना आपको याद रखना है, point slope form of a line, point on the line a x1 y1, slope of the line n, m exists to line L is non vertical, m exists करता है, any point on the line is p xy, डायग्राम सीधा m is equal to y minus y1 upon x minus x1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर आ गया, y minus y1 is equal to m into x minus x1, y minus y1 is equal to m into x minus x1 is equation of line L, is point slope form of line L passing through point x y1 and having the slope L finished। फिर आप समझ गए, ठीक है। अब दूसरा फॉर्म ऑफ लाइन, फिर इसके मैं एग्जांपल दूंगा, दो फॉर्म ऑफ लाइंस करेंगे, फिर वी विल ट्राई टू सॉल्व इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन इट, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कौन सी मेथड से हम कर रहे हैं। ओके, डन। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ द लाइन इज 2 point form of a line, 2 point form of a line, 2 point form of a line। इसका मतलब लाइन के दो पॉइंट्स पता होंगे, लाइन पे दो पॉइंट्स पता होंगे। सपोज लेट रिक्वायर्ड लाइन, लेट गिवन लाइन बी एल, लेट गिवन लाइन बी एल और उसमें दो पॉइंट्स पता है। सो 2 पॉइंट्स, लेट a x1 y1 and b x2 y2 be two distinct points on line L, be two distinct points on line L। मतलब लाइन L पे दो पॉइंट्स होंगे और वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, ax1 y1 bx2 y2। दो पॉइंट्स ऑन द लाइन L कौन से होंगे, ax1 y1 एंड bx2 y2। दो पॉइंट्स पता है हमको, दो पॉइंट्स पता है हमको, और आपको याद रखना है कि here a के y कोऑर्डिनेट सेम नहीं होने चाहिए और a और b के y कोऑर्डिनेट्स सेम नहीं होंगे और x कोऑर्डिनेट्स भी सेम नहीं होंगे। तो x y कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं है, इसलिए लाइन AB हॉरिजॉन्टल है, इसलिए लाइन L हॉरिजॉन्टल नहीं है, और a और b के x कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये लाइन कैसी है, वर्टिकल भी नहीं है। So line L is neither horizontal। क्यों? क्योंकि a और b के
y कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं है, इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, दैट इज L is हम लोग कैसे लिखते हैं NH LB, मतलब नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, और कौन से दो पॉइंट्स हैं ax1 y1 bx2 y2 r on L, r on L। और एनी पॉइंट ऑन द लाइन L क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन लाइन L क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन लाइन L क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन लाइन L क्या होता है pxy। तो पहला पॉइंट सपोज है a x1 y1, दूसरा पॉइंट है b x2 y2, और एनी पॉइंट ऑन लाइन में रख रहा हूं pxy, let pxy, let any point on line L is equal to pxy। तो दो पॉइंट्स ऑन द लाइन कौन से ax1 और bx2 y2, y1 is not equal to y2, x1 is not equal to x2, pxy is any point on the line। तो सीधा और लाइन L is neither horizontal nor vertical, so can I say slope of here ABP, here they are collinear, ABP are collinear points, it's obvious, are collinear points, so have slope of AB, slope of line AB will be equal to slope of line BB will be equal to slope of line AB। मैं इसमें से collinear points पे हमने ये यूज की, देखो उसी का रिवीजन हो रहा है। I could have given you directly इसका रिजल्ट, but what I will prefer कि आप पहले समझो कैसे करना है, क्योंकि ये में आंसर लाना बहुत इजी है, पर एक बार आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन AB is equal to slope of line BB is equal to slope of line PB, तो इसमें से मैं यूज करूंगा स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB BB is equal to slope of line BP is equal to slope of line AB। स्लोप क्या होता है, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स BB, तो y minus y2 तो क्या आएगा y minus y2 अपॉन क्या आएगा y minus y2 is equal to x minus x2 y minus y1 ओके सॉरी, इसमें मुझे यूज करना है स्लोप ऑफ AB, ओके एग्जैक्ट जो आंसर चाहिए मुझे, तो इसमें से मैं यूज करूंगा स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB is equal to slope of line AB। पहले दो को इक्वेट करा, slope of line AB is equal to slope of line AB, ये वो आंसर चाहिए, that's why what is slope of line AB, difference in y coordinates y2 minus y1 upon difference in x coordinates x2 minus x1 is equal to slope of line AB। A coordinates है x1 y1, A coordinates है x1 y1 और B coordinates है xy, so y minus y1 upon x2 minus x minus x1, so y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon x minus x1। x वाले टर्म्स को साथ में लिखना है, इसलिए मैं लिखूंगा x minus x1 upon y x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to x minus x1 इधर और y2 minus y1 नीचे, तो x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1। This is equation or is the 2-point form is 2-point form of line L passing through, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, passing through two distinct points ax1 y1 and bx2 y2। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं ये फॉर्मूला आपको पहले सिखा चुका हूं, सो आपको रिकॉल हो जाएगा। passing through two distinct points ax1 y1 b x2 y2, और हाँ तो याद रखना है कि
here x1 cannot be equal to x2, y1 cannot be equal to y2. तो ax2 y1 bx2 y2 2 points on the line L है, ax2 y1 bx2 y2 2 points on the line L है, और x1 is not equal to x2, ax2 y1 bx2 y2 are the points on line L. x1 is not equal to x2, y1 is not equal to y2, और any point on the line L is axy. सीधा रिजल्ट याद रखना है, x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is 2 point form of line L passing through two distinct points ax1 bx2 y2, and where pxy is, ये लास्ट स्टेटमेंट आपको याद रखना है, where pxy is any point on L, point on line L. ओके, तो उसी चीज को शॉर्ट में समझ करते हैं. 2 point form of line L. कौन से दो पॉइंट्स है लाइन L के? कौन से दो पॉइंट्स है लाइन L के? 2 points ax1 y1 here, ax1 y1 and bx2 y2 are 2 points on line L, are two given distinct points on line L. ठीक है, this is given. line L पे दो पॉइंट्स दिए हैं, line L पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, line L पे दो पॉइंट्स दिए हैं, कौन से? ax1 y1 bx2 y2. now since 2 points on the line are ax1 y1 and bx2 y2, और दूसरा कि ये लाइन कैसी है? नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल. क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी सेम नहीं होना चाहिए. मैं इधर पहले एक डायग्राम लाइन का ड्रॉ कर देता हूं. L, उसमें पहला पॉइंट कौन सा है? a x1 y1. दूसरा पॉइंट कौन सा है? उस पे b x2 y2. और आपको फिर याद रखना है p xy is any point on line L. now here x1 is not equal to x2, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स, दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम नहीं है और दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम नहीं है. therefore line L is neither horizontal nor vertical. ठीक है, और any point on the line L क्या था? pxy. let pxy is equal to any point on line L. तो फिर याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन L is x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y minus y1. Let pxy is equal to any point on line L. Therefore, सीधा आपको याद रखना है x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equation is 2-point form is 2-point form. Equation of line is 2-point form. Equation of line passing through obviously two distinct points, passing through two distinct points, passing through two distinct points x1 y1 and x2 y2, where xy is any point on line L. तो ब्रैकेट में लिखने का x1 is not equal to x2, y1 is not equal to y2. Passing through two distinct points, passing through two distinct points x1 y1 and x2 y2, where xy is any point, xy is any point on line. और हाँ, तो ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाना चाहिए x1 is not equal to x2 and y1 is not equal to y2. So simple you have to remember line. Okay, so 2-point form हो गया, point flow form हो गया, horizontal line, vertical line के बारे में भी मैंने आपको बता दिया. So now let us solve any example. Suppose based on this, two theories are there or not? Yes, we have example number 7. Example number 7 and example number 8. Example number 7 says find equation of line 2 minus 2 3 with slope minus 4. Okay, point on L. Point on line L कितना है? A minus 2 3. उसको आप सोचो A x1 y1. Slope of line L.
स्लोप ऑफ L कितना है m, कितना दिया है, स्लोप इज गिवन एज -4. तो इक्वेशन ऑफ L पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट x1 y1 L स्लोप m वो कितना आएगा, y minus y1 is equal to m into x minus x1. ओके, स्लोप का सिंबल क्या होता है, m, which is -4. दिस इज given और a minus 2 3 को हम सोचेंगे x1 y1. पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ द लाइन पता है, स्लोप ऑफ द लाइन पता है. इक्वेशन ऑफ L पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus y1 की जगह पे 3, m की जगह पे -4 और x minus of -2. सिंपलीफाई करो. y minus 3 is -4 into x plus 2. So y minus 3 is -4x minus 8. Bring everything on left side. और आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपने 9th और 10th में ग्राफ किया है जब आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ax plus by plus c is equal to 0. और आपको पता है कि द ग्राफ ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 is a line. तो उसका मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता होना चाहिए, जो हम सीखेंगे इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस के. जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax plus by plus c is equal to 0. इसके x वाला टर्म y वाला टर्म और फिर कांस्टेंट उस फॉर्म में लिखना है. सो -4x बोथ ऑफ द लेफ्ट plus 4x plus y minus 3 plus 8 is equal to 0. तो 4x plus y plus 5 equal to 0 is required equation. Let me check this. 4x plus y plus 5 is equal to 0 is the required equation. इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, पर अगर आ गया तो इतना आपको लिखना पड़ेगा. पॉइंट ऑन L a minus 2 3 ax बराबर, स्लोप ऑफ L m minus 4 given, इक्वेशन ऑफ L दिस. इसके बाद आप ये स्टेप लिखो, डायरेक्टली लिखो. इसके बाद ये स्टेप 1 मार्क्स. एग्जांपल नंबर 7. ओके, एग्जांपल नंबर 8 करते हैं. एग्जांपल नंबर 8. 2 पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद पॉइंट्स 1 minus 1. लेट 1 minus 1 को आप सोचो a x1 y1 और b कितना है 3 5. ध्यान से देखो, a 1 minus 1 है और b 3 5 है. तो आपको पहले देखने का कि दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल है, नहीं. दोनों का y कोऑर्डिनेट इक्वल है, नहीं. तो फिर इसको a x1 y1 सोचने का और इसको भी x2 y2 सोचने का और फिर लिखने का कि हियर सीधा आप लिखिए x1 is not equal to x2. दोनों के x कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं है और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं है. तो इस वे को हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं. 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन आपको याद रखना चाहिए. व्हाट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन? Equation of line passing through point x1 y1 and having slope m is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus y1 is equal to m into x minus x1 is equation of line passing through x1 y1 point and having slope m. अब यहाँ पे क्या है? a 1 minus 1 b 3 5. दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम नहीं है. तो इसके लिए मैंने a 1 minus 1 को ax1 y1 और b 3 5 को bx2 y2 कंसीडर किया और बताया. Here x1 is not equal to x2, y1 is not equal to y2. उसका मतलब क्या कि दोनों का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, इसलिए हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं. बिकॉज़ 2 पॉइंट फॉर्म हम कब यूज कर सकते हैं? जब लाइन L neither horizontal nor vertical होनी चाहिए. So therefore AB is neither horizontal nor vertical line. NHN put right this way, x1 is not equal to x2 and y1 is not equal to y2. So equation of line AB by 2 point form x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1. Yes, finish it off in this way. So x minus, what is x1? X minus 1 upon x2 minus x1, which is 3 minus 1, which is y minus y1. So y minus 1 upon y2 minus y1. So 5 minus of minus 1. This way is easy to remember. So x minus 1 upon 2 is y plus 1 upon 5 plus 1. So x minus 1 upon 2 is equal to,
ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको सिंपलीफाई कर दो और कैसे फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आना चाहिए, ax plus by plus c is equal to 0। पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म और फिर कांस्टेंट। ओके, सो x minus 1, so therefore x minus 1 upon 2 is y plus 1 upon 6, cross multiplication करो, 6 times x minus 1 is equal to 2 times y plus 1। बाद में do the calculation is your this is that, आराम से करो, कॉपी मत करना, आप 2 को डिवाइड कर सकते हैं, 6x minus 2y minus 6 minus 2 is 0, therefore 6x minus 2y minus 8 is 0, divide throughout by 2, आंसर आना चाहिए 3x minus y minus 4 is equal to 0, 2 common, therefore 2 0 नहीं है, इसलिए 3x minus y minus 4 equal to 0 is required equation of the line, is required equation of line। Okay, उन्होंने they have get minus 3x plus y plus 4, but if you prefer, if you look at the answers which are at the back or in, you can say different competitive exams or different reference books, x का कोएफिशिएंट हमेशा प्लस में रखते हैं, that's why we are getting this answer। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, टेक्स्ट बुक का आंसर आ जाएगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -3x plus y plus 4 हो जाएगा, that is multiply by -1 multiply by -1 minus 3x plus y plus 4 equal to 0 is required equation। ये भी चलेगा, anyone will give you, no teacher will give you wrong। So finished now, coming to the next point, now coming to the next point, 2 point form हो गया और this part is clear। अब suppose मैं एक को और एग्जांपल कंसीडर करता हूं, let a you keep it as √2, 0, b you keep as √2, -5। अब इधर अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको चेक करने का कि a और b का x कोऑर्डिनेट सिद्ध है कि नहीं, और गिवन 2 पॉइंट्स, इक्वेशन क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते जब वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, इसलिए मैंने क्या बोला कि जब भी 2 पॉइंट्स दिए हो और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है तो a √2, 0 की √2, -5 है, तो इसको पहले ax1 y1 कंसीडर करो और इसको आप भी x2 y2 कंसीडर करो। हियर x कोऑर्डिनेट्स आर सेम, हियर x1 is equal to x2 is equal to √2 and y1 is not equal to y2, so लाइन AB कैसी हो जाएगी, line AB में A और B, the 2 points have same x coordinate √2, so AB is vertical line, it is a vertical line जिसमें x coordinate equal to √2 है, जिसमें x coordinate equal to √2 है। So what is the speciality of vertical line, all the points have same x coordinate, so all the points on line AB will have same x coordinate √2, therefore equation of vertical line AB, सीधा all the points will have x coordinate equal to √2, that is x minus equation of vertical line AB, therefore equation of vertical line AB वो क्या होगा, x is equal to √2, that is x minus, therefore x minus √2 equal to 0 is required equation। ये भी चलेगा या ये भी चलेगा, simple। Now you know I am going to give an example of say horizontal line A -√3, pi b मैं रख रहा हूँ -√2, pi। a का x कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है पर y कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हियर y1 is equal to y2 is equal to pi, मतलब a और b का y कोऑर्डिनेट सेम है एंड x कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, एंड x1 is not equal to x। इसका मतलब a and b have same y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब लाइन AB बाय डेफिनेशन क्या होगा,
अगर y कोऑर्डिनेट सेम है किसी भी लाइन पे तो वो लाइन कैसी हो जाती है, हॉरिजॉन्टल। आई बिलीव ये पॉइंट हम लोग 4 to 5 टाइम्स लिख चुके हैं और ये पॉइंट मैंने 3 बार सबस्क्रिप्ट थियरी के टाइम में 2 बार और अभी, सो दिस वे वी वुड हैव डन 3 टाइम्स। सो आपको याद हो जाना चाहिए कि हियर A और B have same y coordinate 5, so therefore line AB is horizontal line, so therefore उसका equation of horizontal line AB क्या होगा? horizontal line की खासियत क्या होती है? all the points have same y coordinate, तो same y coordinate pi है, तो y is equal to pi, therefore y minus pi equal to 0 is required equation। ये भी आप लिख सकते हो y is equal to pi या y minus pi is equal to 0। Now before continuing, let me have some water and I will continue with the remaining theory and remaining sums। We have done the 2-point form of a line. We have done, I gave you the knowledge of 2-point form of a line, point slope form of a line. I gave you the knowledge of, as you know, the horizontal line, vertical line, फिर इक्वेशन कैसे निकालें, एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर दिए। तो अब आपको उतना स्ट्रेस मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, नाउ let us continue and do few more different forms and then we will continue। okay, now we have done the point slope form, we have done 2-point form। now general equation of a line, consider the next topic general equation of a line करें। उसके पहले okay, x intercept of a line, give the heading x intercept of a line, intercepts of a line, give the heading intercepts of a line, intercepts of a line, intercepts of a line। what is the meaning of intercepts of a line? अभी आपको याद रखना है, उसमें जो पहला टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं वो है x intercept of, suppose वो line L, x intercept of line L, x intercept of a line L। suppose line L meets x-axis, suppose line L, here we go, suppose line L meets x-axis at point capital A is 0, suppose line L meets x-axis at a point capital A is 0, तो आपको याद रखना है x intercept of line L, x intercept of line L हो जाएगा छोटा a, x intercept of line L हो जाएगा छोटा a। इसका मतलब क्या है? सपोज मैंने क्या बोला कि सपोज द लाइन L means x-axis, suppose line L x dash y dash, suppose line L means x-axis, ऐसे केस हो सकते हैं। okay, this is line L, it can meet x-axis at this point also and this point is a is 0, it can meet x-axis through origin also, so suppose this is L and suppose it passes through origin a, ये origin है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 0 0 और सपोज ये पॉइंट है a 0। in the third case suppose the line L meets x-axis like this, तो तब a यहाँ पे होगा a is 0। मैंने क्या लिखा, x intercept of a line, उसमें x intercept आता है और y intercept आता है। सपोज लाइन L meets x-axis at point a is 0, तो a का x कोऑर्डिनेट है तो x intercept of line L is a। सपोज लाइन L meets x-axis, suppose line L meets x-axis at a point a is 0, तो आपको याद रखना है x intercept
of line L is a नहीं is छोटा a। और मैंने क्या बोला कि suppose line L its x-axis like this a is 0, suppose line is passing through origin, line can pass through, can intersect x-axis and positive x-axis, line L can intersect the negative x-axis and line L can also pass through origin, मतलब the line L can intersect x-axis at origin, तो ये origin है O 0 0 और यहाँ का पॉइंट है A is 0। You understood? Suppose line L intersects x-axis at origin, there will be three cases। तो तीनों केस में x इंटरसेप्ट क्या है? छोटा a। लाइन L meets x axis, suppose line L meets x axis at a point at, suppose line L meets x axis at one point a is 0 only। मैंने क्या लिखा? suppose line L meets x axis at one point a is 0 only, तो x इंटरसेप्ट ऑफ L क्या हो जाएगा? छोटा a। suppose line L meets इंटरसेक्ट पॉजिटिव x एक्सिस एट a is 0, सब दूसरा केस हो सकता है वो x एक्सिस को ओरिजिन पे मिले या नेगेटिव x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे, तो ये हो जाएगा डायग्राम कि इट मींस लाइन L मींस x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। तो तीनों केस में x एक्सिस क्या होता है? छोटा a। समझ गए? यस। अब एक्चुअली व्हाट इज x इंटरसेप्ट? x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L इज x intercept of line is x coordinate, x intercept of line is x coordinate of the point is x coordinate of point where line meets x axis। ये है एक्चुअल डेफिनेशन, पर मैंने आपको पहले समझा दिया डायग्राम से। अब ये सपोज पहला केस है, सपोज ये पहला केस है, सपोज ये दूसरा केस है, सपोज ये तीसरा केस लाइन L के बाद। तो पहले केस में फॉर केस 1 x इंटरसेप्ट ऑफ L क्या है? x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L क्या है? छोटा a, पर वो कैसा है? पॉजिटिव, बिकॉज़ ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस 2 0 3 0 ऐसा है। फिर जो सेकंड केस है वहां पे फॉर जो सेकंड केस है उसमें लाइन L किसको मीट करती है? पहले केस में लाइन L पॉजिटिव x एक्सिस पे a is 0 है, इसलिए x एक्सिस छोटा है पर a पॉजिटिव। सेकंड केस में लाइन L कहां पे इंटरसेक्ट करती है? x एक्सिस को ओरिजिन पे, तो उसका मतलब x इंटरसेप्ट a आएगा और वो a कितना होगा? इक्वल टू 0 a होगा और वो इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू 0। और जो थर्ड केस है उसमें लाइन L नेगेटिव x एक्सिस को मिल रही है, इंटरसेक्ट्स नेगेटिव x एक्सिस एट a is 0, तो ये a का वैल्यू यहां पे -20 -40 होगा, तो a का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। सो x इंटरसेप्ट a है, x इंटरसेप्ट ऑफ L वो क्या आएगा? a, पर वो a कैसा होगा? नेगेटिव। So ultimately what is x intercept of a line is x coordinate of a line is x coordinate of a point where the line meets x axis, मतलब x intercept x coordinate ही है, x intercept x coordinate ही है of the point where the line meets x axis। समझ गए? तो उसका मतलब x intercept क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। x intercept क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। x intercept क्या हो सकता है? नेगेटिव, पॉजिटिव या 0। तो आप लिखो x intercept of a line can be positive, negative or 0। x intercept of a line can be positive, negative or 0। Okay, y axis, x axis, x dash x, ठीक है, y dash। मैंने क्या बोला? Suppose the line L meets x axis at a point a is 0, तो तीन केस हो सकते हैं। line L meets positive x axis at origin, suppose line L x axis को positive x axis पे इंटरसेक्ट करती है, suppose line L इंटरसेक्ट करती है x axis को at origin, ठीक है।
दिस पॉइंट इज ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को। और तीसरा केस, सपोज द लाइन L meets x axis, negative x axis at the point A is 0। तो उस लॉजिक से ये तीनों केस मैंने आपको समझाया कि x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L इज, तीनों केस में यहां पे मैंने वापस समझा दिया है। Therefore here line L meets x axis at one point A is 0 only for one x intercept। Therefore x intercept क्या हो जाएगा? Therefore x intercept of L is छोटा a। x intercept of L is छोटा a। What is x intercept? It is x coordinate। x intercept of L, x intercept of line L वो क्या होता है? x coordinate of point where line L meets x axis। ये आपको समझ में आ गया। और ये जो पहला पॉइंट है, ये जो पहला केस है उसमें x इंटरसेप्ट a है और a इज पॉजिटिव। सेकंड केस में x इंटरसेप्ट a 0 है और तीसरे केस में x इंटरसेप्ट क्या है? a इज नेगेटिव। दिस इज द थर्ड केस, दिस इज द सेकंड केस एंड दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, इसके लिए मैं लिख देता हूं a is greater than 0 here and understood। That is understood। Clear? ये मैंने दो बार तुम्हें एक्सप्लेन किया क्योंकि y इंटरसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। y इंटरसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। ओके, सेम टॉपिक से आप जाएंगे। और हाँ, इधर a is greater than 0, a is equal to 0 और here a is negative। ओके, आप लिखते हैं राइट। ओके, now so x intercept, so for case 1, okay, let me write for case 1 x intercept कितना है? x intercept of L कितना है? छोटा a, when a is positive। For second case, what is x intercept of L? is छोटा a और वो इक्वल टू 0, मतलब x इंटरसेप्ट के पॉजिटिव, x इंटरसेप्ट के 0। और तीसरा, और थर्ड केस x इंटरसेप्ट ऑफ L क्या आएगा? a और वो कैसा है? नेगेटिव। सो x इंटरसेप्ट कैन बी, सो x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, x intercept of a line can be positive, negative, or it can be positive or negative or 0। पर उसकी लेंथ क्या हो? उसकी लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इज a। x इंटरसेप्ट का लेंथ होता है a। लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, ये हो गया इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। फिर आप हेडिंग दो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, फिर आप हेडिंग दो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, फिर आप लेंथ दो, give the heading length of x intercept, give the heading length of x intercept, length of x intercept of line L। डायग्राम वही लग रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो मैं क्या लिख रहा हूं? सपोज लाइन L means x axis, suppose line L means x axis at, suppose line L means x axis at point, at one point A is 0 only। मतलब लाइन L x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको पता है x इंटरसेप्ट ऑफ L क्या आएगा? छोटा a। ओके, और फिर आपको याद रखना है कि लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट
ऑफ लाइन L वो होगा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, इधर ओरिजिन क्या है, इधर ओरिजिन इज O00 here O00 is origin and हमारे पास पॉइंट कौन सा है, A0. Here O00 is origin, here O00 is origin and A0 is on line L. O00 is on line L और दूसरा O00 origin है और दूसरा क्या केस, ये तीन अलग अलग केसेस है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस. ओके, तो here O00 is the origin और point A0 is on line L. line L means x axis है 1 point A0, इसका x axis A हो गया, O00 origin है और पॉइंट क्या है, A0 is on the line L. तो आपको याद रखना है length of the x intercept, length of the x intercept, length of x intercept, length of x intercept of line L तब क्या होगा, distance between O00 and A0. तो वो क्या आएगा, OA और वो क्या होगा, mod A. OA which is mod A, मतलब modulus of A. अब अगर ओरिजिन और A सेम है, अगर सेकंड केस है, अगर लाइन L का सेकंड केस है, मतलब ओरिजिन और A सेम है तो लेंथ होगा x इंटरसेप्ट 0 आएगा. अगर इसमें फर्स्ट केस है तो ये पॉजिटिव तो OA is mod A is A और थर्ड केस में A is negative तो OA is mod A which will be minus. तो ये समझ गए, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L is OA which is equal to mod A. Here ये याद रखने का, O00 and A0. Here A0 belongs to L and again O00 is origin symbol. Is origin. Okay, just one minute. Okay, so that finishes the theory of x-intercept of a line. That finishes the theory of x-intercept of a line. और दूसरा length of x-intercept. So now let us do the unit experiment, which is let us do the topic of y-intercept of a line and length of y-intercept of a line. Y-intercept of line L. Y-intercept of line L. तो आपको पता है x-intercept में क्या था? The line meets x-axis at one point A0 only. तो आपको पता है मैं यहाँ पे क्या रखूँगा? Suppose the line L meets y-axis at one point. Suppose line L meets y-axis at one point. At one point, suppose मैं रखता हूँ B0 B only. अब इसका पहले डायग्राम बना देते हैं तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी. y एक्सिस और x एक्सिस आप ड्रॉ कर लो. x x dash y axis is y dash. अब line L meets y axis at the point B0 B only. तो पहला केस क्या हो सकता है? It can be like this. The line L can meet y axis, पॉजिटिव y axis पे इंटरसेक्शन हो सकता है B0 B. line L can intersect y axis at one point, origin भी हो सकता है वो point. So this सपोज सेकंड केस है जिसमें लाइन y एक्सिस को ओरिजिन पे मिल रही है B0 B. और तीसरा केस क्या होता है कि लाइन L meets the point means intersects y axis at negative x axis. सपोज वो negative x axis वाला केस इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं. ये है लाइन L और ये पॉइंट है B0 B. This is our first case. This is our second case. Okay. And this is our third case. तो आप समझ गए कि लाइन L meets y axis at one point B0 B only. तीन केस हो सकते हैं. लाइन L intersects positive y axis at B0 B. Line L intersects y axis at origin and line L intersects negative y axis at B0. तो उस केस में y
y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L क्या है, छोटा b। हियर क्या है, B0B is on line L। तो what is y intercept, अगर आप ध्यान से देखो what is y intercept, actually what is y intercept, y intercept is b। what is b? It is a y coordinate, it is a y coordinate of the point, it is a y coordinate of the point where the line meets y axis। तो what is y intercept? It is the y coordinate of the point where the line meets y axis। what is y intercept? B0B पे इंटरसेक्शन करता है थर्ड केस में, तो what is y intercept? b क्या है, y coordinate of the point where the line meets y axis। तो हम लिखेंगे कि therefore what is y intercept of L? So y intercept of line, therefore y intercept of line L is actually nothing but y coordinate of point, y coordinate of point where line L meets y axis। ओके, समझ गए। अब अगेन पहले केस में y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज y इंटरसेप्ट, विद y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कोई भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। फर्स्ट केस में, फॉर केस 1 व्हाट इज y इंटरसेप्ट, फर्स्ट केस में लाइन L मींस पॉजिटिव y एक्सिस एंड B0B, तो y एक्सिस तो b है, y एक्सिस तो b है, तो वो b कैसा है, पॉजिटिव। फिर सेकंड केस में y इंटरसेप्ट ऑफ L क्या है, लाइन L, सेकंड केस में लाइन L मींस y एक्सिस में थोड़ी सी, तो b क्या है इसमें 0, सो कैसे y से b है एग्रीड, पर वो 0 है, मतलब y इंटरसेप्ट इज 0। और थर्ड केस में लाइन L, थर्ड केस में लाइन L मींस नेगेटिव y एक्सिस एट B0B, सो व्हाट इज y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट ऑफ L b है और वो b कैसा है, नेगेटिव, सो y इंटरसेप्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। तो आप लिखो y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन कैन बी, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L लिखो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। therefore y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L कैन बी क्या हो सकता है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव कब होगा, इफ द लाइन L इंटरसेक्ट्स पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव। अगर लाइन L इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट वन पॉइंट, अगर लाइन L इंटरसेक्ट्स नेगेटिव y एक्सिस, और 0 कब होगा, अगर लाइन L मींस पॉजिटिव x एक्सिस, अगर मींस y एक्सिस एट ओरिजिन, सॉरी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कब होगा, if the line meets y axis at origin। okay, simple not tough, not easy। हाँ, theoretical points ये सब चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, ये सब चीजें I am giving from my own side so that you can understand everything very easily। तो कुछ क्वेश्चंस इजी वाले क्वेश्चन आराम से आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो और आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, सो क्लियर, सो y इंटरसेप्ट हो गया। नाउ गिव द हेडिंग लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L। तो आप लिखो सपोज लाइन L, इसके बाद 10 मिनट। Okay, I will keep this topic as the last topic। Suppose line L means y axis at one point B0B only। इसका मतलब y इंटरसेप्ट ऑफ L क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट ऑफ L क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट ऑफ L हो गया। ओके, सो सपोज द लाइन L means y axis at point B0B only। First case means the line L means intersects positive y axis, line L intersects y axis with origin। Third case line L intersects negative y axis। So point B0B is on L, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, B0B, so B0B, therefore B0B is on line
L. So by definition y intercept क्या होगा? y intercept of line L will be छोटा b और यहाँ पे b कैसा है? पॉजिटिव. यहाँ पे y intercept b is पॉजिटिव. यहाँ पे y intercept b 0 है और यहाँ पे y intercept b नेगेटिव है. So y intercept क्या हो सकता है? Therefore y intercept b here y intercept of L क्या हो गया? b. वो डायग्राम वापस आप ड्रॉ कर देना. So here y intercept can be positive or negative or 0. Now here origin कौन है? And O00 is origin और दूसरा B0B y intercept b है. Also B0B belongs to line L. तो आपको याद रखना है कि what is length of y intercept? OA. उसमें था x intercept में क्या था? O00 था origin और A 0 पॉइंट पर लाइन L था तो y intercept था A. तो इधर y intercept B है उसका मतलब B0B is on the line है और O00 is origin. तो आपको याद रखना है length of the y intercept of line L वो क्या होगा? origin O00 और B0B के बीच का डिस्टेंस. So OB which is nothing but mod B. Because mod B क्यों? क्योंकि दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है तो डिफरेंस इज y कोऑर्डिनेट mod B. और अगर B origin होगा, अगर सेकंड केस आप कंसीडर करते हो कि लाइन L meets y axis at origin तो तब B 0 होगा तो तब लेंथ ऑफ द y intercept 0 होगा. इस केस में और इस केस में लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. हां इस केस में y intercept भी पॉजिटिव लेंथ भी पॉजिटिव. इस केस में y intercept नेगेटिव पर लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. दैट्स व्हाई mod b. ये आपको याद रखना है फॉर द टॉपिक y intercept of the line L. Here y intercept of line L is b. Finished? Clear? इतना आपको समझ में आ गया. अब जस्ट इमेजिन एक ही लाइन में आपको याद रखना है 3 टाइप्स ऑफ लाइंस मैंने आपको बताया. 3 टाइप्स ऑफ लाइंस मैंने आपको बताई. हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल लाइन. तो अब आप मुझे सोच के बताओ कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस हो सकती है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो. तो हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगी? कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करेगी y एक्सिस को एक ही पॉइंट पे. आप समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन कभी x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. तो आप मुझे बताओ कौन सी लाइन का x हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सा इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करेगा और कौन सा इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा? सोचो वर्टिकल लाइन का x इंटरसेप्ट या y कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा. पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. तो उसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस को एक पॉइंट पे कर सकती है. उसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हैज y intercept only, has y intercept only. Horizontal line has no horizontal line has no x intercept because horizontal line cannot intersect. Okay, I will write horizontal line cannot intersect y axis at one point. इसका मतलब horizontal line has no x intercept, ये आपको याद रखना है. और फिर it's obvious horizontal line has only y intercept. क्यों? क्योंकि वो y एक्सिस को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकती है. हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन cannot, हॉरिजॉन्टल लाइन meets, sorry मैं थोड़ा गलत लिखा. हॉरिजॉन्टल लाइन meets, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, any horizontal line meets any horizontal
horizontal line meets y axis at 1 point only. So obviously horizontal line is only y intercept, पर अब उसका x intercept exist नहीं करेगा because only horizontal line x axis को एक ही पॉइंट में नहीं इंटरसेक्ट कर सकते. ओके, फिर vertical line. So any vertical line meets x axis at 1 point only, at 1 point only. उसका मतलब वर्टिकल लाइन का कौन सा इंटरसेप्ट एक्सिस्ट नहीं करेगा? वर्टिकल लाइन का. वर्टिकल लाइन हैज नो y intercept. Vertical line has no y intercept. Okay, vertical line has no y intercept. पॉइंटर करके आप रिजल्ट याद रखो. और दूसरा, vertical line has only x intercept. Vertical line has only x intercept. x axis खुद को infinite points में exist करती है. x axis खुद को infinite points में exist करती है और बाकी lines parallel to x axis को intersect नहीं करेंगे. That's why no x intercept for horizontal lines. और vertical line has no y intercept. क्यों? क्योंकि vertical line कैसी होती है? या तो y axis या parallel to y axis, मतलब वो कभी भी y axis को एक पॉइंट में नहीं मिलेगी. That's why vertical line has no y intercept. अब थर्ड प्रकार की लाइन क्या होती है? Neither horizontal nor vertical. तो वो तो x axis और y axis को वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी. Neither horizontal. Suppose a line which is neither horizontal nor vertical. Neither horizontal nor vertical meets x axis and y axis both at one point. Intersects means x axis and y axis both, मतलब y axis को भी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा और y axis को भी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. Therefore उसका ऐसी लाइन को so x intercept, so both x intercept and y intercept exist for neither horizontal nor vertical line. For neither horizontal nor vertical line. मतलब जो लाइन neither horizontal nor vertical है उसका x intercept और y intercept दोनों एग्जिस्ट करता है. वर्टिकल लाइन का खाली y intercept एग्जिस्ट करता है, उसका खाली x intercept एग्जिस्ट करता है, उसका y intercept एग्जिस्ट नहीं करता. और हॉरिजॉन्टल लाइन any vertical line means x axis. Okay, vertical line has only x intercept. Vertical line means x axis at one point only. So vertical line has x intercept and vertical line has no y intercept. Horizontal line can mean y axis at only one point. So उसका y intercept exist करेगा और x intercept exist नहीं करेगा. ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, visualize it and then you can understand. और जो लाइन neither horizontal nor vertical है, it has both x intercept and y intercept. So that's it for today. I will continue the remaining theory and sums in the next upcoming video lectures. आपने देखा पूरा theoretical point है, easy है if you understood and revised properly, and if you can recall, the sums are relatively very easy. So study well, revise well, take care.